بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں احسن حمید راجہ اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کشمیر ڈیبیٹ۔ ناظرین، آپ کو بتائیں کہ آج ہمارے جو مہمان ہیں شیخ عبد المتین، سیکرٹری جنرل حریت کانفرنس اور مسلم لیگ کے کنوینر بھی ہیں۔ ناظرین، دوسرے جو ہمارے مہمان ہیں ڈاکٹر زاہد انور خان، بین الاقوامی امور کے ماہر ہیں، اور آپ کو کشمیر کے حوالے سے بتائیں تو کل کشمیری کل یوم حق خود ارادیت منائیں گے، اور پوری دنیا میں خاص کر کے جس طرح کے مظالم کشمیر کے اندر ہو رہے ہیں، بڑے پیمانے پر وہاں پہ مظالم اس حوالے سے بھی ہو رہے ہیں کہ نوجوانوں کو وہاں پہ شہید کیا جا رہا ہے اور ان کی املاک ان کو بھی نقصان پہنچایا جا رہا ہے، اور ساتھ مقبوضہ جموں کشمیر میں ایک اور بے گناہ کشمیری کی جائیداد کو ضبط کر لیا گیا ہے۔ یہ کارروائیاں تسلسل کے ساتھ جاری و ساری ہیں۔ دوسری جانب مودی کی جو حکومت ہے فاسسٹ کا نظریہ لے کر وہ وہاں پہ بڑے پیمانے پر زمینیں ضبط کر رہی ہے، اور اس کا بڑا جو اس حوالے سے وہ کارروائیاں ہیں وہ یہی ہیں کہ 2024 کا الیکشن کیسے وہاں سے جیتا جائے، اور اس میں ہندوتوا کا نظریہ لیے ہندوؤں کی بڑے پیمانے پر وہاں پہ آباد کاری کی جا رہی ہے۔ اس حوالے سے شیخ عبد المتین صاحب، آپ بڑے پیمانے پر کام کر رہے ہیں، سیکرٹری جنرل ہیں حریت کانفرنس کے، کیا کہیں گے کہ تمام تر کارروائیاں کس نہج پر ہیں، اور یہ بین الاقوامی سطح پر کیوں نہیں کوئی پذیرائی ہو رہی، اور اس حوالے سے بات چیت؟ اور خاص کر کے دیکھیں، سب سے بڑی بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی یہ ہے کہ یہ اقوام متحدہ کی قراردادوں میں تمام تر چیزیں موجود ہیں، اس کے باوجود وہاں پہ بڑے پیمانے پر ہندوؤں کی آباد کاری یہ کیسے ممکن ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ جیسے کہ رجا صاحب آپ نے خود فرمایا ہے کہ کل کے حوالے سے کہ 5 جنوری، جب آپ 5 جنوری کی بات کریں گے تو ہمیں 1949 کی طرف جانا پڑتا ہے، یعنی جہاں پہ ایک قرارداد پاس ہوئی ہے جی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کشمیر کا کوئی یہ جو مسئلہ ہے یہ کوئی یعنی کشمیریوں اور یعنی یہ بھارت کے درمیان مسئلہ نہیں ہے، بلکہ یہ ایک بین الاقوامی مسئلہ۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ پھر اگر ہم اقوام متحدہ کو دیکھتے ہیں، سلامتی کونسل کی قراردادیں دیکھتے ہیں، تو اس حوالے سے 18 سلامتی کونسل کی قراردادیں پاس ہوئی ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ حتمی فیصلہ جو ہے وہ کشمیری عوام کو کرنا ہے۔ اب جہاں تک مقبوضہ کشمیر کی زمینی صورتحال کی بات کریں گے، یعنی ہم دیکھتے ہیں یہ جو ہمارا کشمیر ہے جس کو جنت بے نظیر کہا جاتا تھا اور جو اس وقت ایک جہنم بنا ہوا ہے، لیونگ ہیل بنا ہوا ہے، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ وہاں پہ جو ہے قابض فوج موجود ہے، اور وہ جو قابض فوج ہے محتاط اندازے کے مطابق 10 لاکھ کہا جاتا ہے، لیکن کیمس کی ایک رپورٹ آئی ہے جس میں انہوں نے آئیڈینٹیفائی کیا ہے کہ جس میں کہا گیا ہے کہ 15 لاکھ کی فوج موجود ہے۔ اب یہ جو فوج قابض فوج وہاں پہ موجود ہے، ان کے پاس وہاں پہ بلیک لاز ہے، وہ بلیک لاز ان کو امپیونٹی دیتے ہیں کیونکہ یہ کسی بھی عدالت میں جواب دہ نہیں ہے، بلکہ ستم ظریفی یہ ہے کہ اس میں جو لوگ جو فوجی ملوث ہوتی ہے، یعنی جو جن کو ہم کہیں گے جو مجرم ہوتے ہیں، ان ظالمانہ کارروائیوں میں ملوث ہوتے ہیں، ان کو سزا نہیں دی جاتی ہے بلکہ ان کو پرائزز، میڈلز اور ترقی دی جاتی ہے۔ جی بالکل ایگزیکٹلی ایسا ہی ہے، یہ بھی ایک صورتحال ہے۔ تو جہاں تک اب کشمیر کا مسئلہ ہے، کشمیر کے حوالے سے کشمیریوں کی جو اس وقت زندگی کو اجیرن بنا دیا گیا ہے، جہاں پہ انہوں نے کشمیریوں کو یعنی جو اس وقت صورتحال ہے، سانس لینا بھی راجہ صاحب اگر میں کہوں گا مشکل ہے، غلط نہیں ہوگا، بالکل ایسا ہی ہے۔ اپنی بلیک لاز میں جو آپ کا ایک اور سوال تھا، یعنی پراپرٹیز کو اٹیچ کرنا، سیز کرنا، یہ جو آپ نے ابھی کہا کہ ایک اور بندے کی مثال آپ نے پیش کی، جی کشمیری کی، ابھی تک جو ہے 40 سے زیادہ جو ہماری پراپرٹیز ہے اس کو اٹیچ کیا گیا ہے، اور اس حوالے سے جو ان کی ورث بنتی ہے وہ بلینز آف روپیز بنتی ہے۔ تو یہ جو اس کے تحت یہ کرتے ہیں اس کا ایک بلیک لاز ہے جس کو UAPA کہتے ہیں، ان لافل ایکٹیویٹیز اور پریونٹیو ایکٹ، یہ جو ایک ایکٹ ہے اس کے تحت ہماری جو وہاں پراپرٹیز ہے ان کو اٹیچ کیا جا رہا ہے۔ اصل میں آپ نے خود بھی بات بتائی ہے کہ اب بھارت میں جو ہے الیکشن ہونے والے ہیں، تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس وقت جو وہاں پہ بھارت میں جو جن کے پاس زمام ہے یا جن کی حکومت ہے وہ ہے بھارتیہ جنتا پارٹی۔ پھر ہم بھارتیہ جنتا پارٹی کو اگر ہم دیکھیں گے، پھر ہم اس کے عزائم کو دیکھیں گے، پھر ہم ان کے ایجنڈاز کو دیکھیں گے، پھر ہم ان کی کارروائیوں کو دیکھیں گے، پھر ان کی جو ببائیں دہل وہ اعلانات کرتے ہیں، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ ایک فیسسٹ حکومت ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایک ایکسٹریمسٹ یعنی حکومت ہے، یعنی جس کے توسیع پسندانہ
अजाइम है। और उन्होंने इस हवाले से जो अब वहाँ पे इलेक्शंस भी हो रहे हैं, आपने देखा है कि जो कश्मीर की खुसूसी हैसियत जो थी वहाँ पे मौजूद थी, 5 अगस्त को 2019 में उन्होंने उस खुसूसी हैसियत को भी ख़त्म किया है। कि हमारी जो जुदोजहद है वो हाकी खुद इदरायत की है, ये उन्होंने खुद ही दिया था, उसको भी उन्होंने ख़त्म किया है। यानी जो भारत के साथ जो लोग थे जो कभी ये समझते हैं कि शायद सेकुलर भारत और डेमोक्रेटिक भारत हमारे लिए बेहतर है, तो आज अगर आप उनको देखेंगे जो कठपुतली वहाँ गुजरा आला भी रहे हैं या जो मिनिस्टर्स रहे हैं या जो इन पार्टीज़ के साथ शामिल रहे हैं, वो भी कहते हैं कि हमारे साथ धोखा किया गया है। तो इसलिए जब हम कश्मीर की सूरत हाल देखेंगे फिर हम जिम्मेदारियों का तयन करेंगे। जो आपने एक और सवाल भी किया है जी बिल्कुल, आपने अपनी बात में बहुत सारे सवालात इसमें मतलब शामिल किए हैं। तो आपने ये बात भी की है क्या अक़वाम आलम और ख़ासकर जो अक़वाम मुत्तहिदा की जिम्मेदारी है, तो बिल्कुल उनकी जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि वहाँ पे जो है, लेकिन जिम्मेदारी तो उनकी बनती है, लेकिन आपके ख्याल में क्या वो जिम्मेदारी अदा कर रहे हैं? देखिए, अगर जिम्मेदारी अदा कर रहे होते तो फिर हमारे ये जो जुल्म जबर तो ख़त्म होता। अगर उन्होंने वो यानी जिम्मेदारी आयद की होती तो हमारी हिरासती कत्ल नहीं। शेख अब्दुल मतीन साहब क्या समझते हैं कि एक तो वो जिम्मेदारी वाकई में अदा नहीं कर रहे, लेकिन क्या ये भी समझते हैं आपके उनके अंदर वो ताकत है अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर कि जो ताकत वो इस्तेमाल करके कश्मीर के अंदर मज़ालिम को रुकवा सके? बिल्कुल, उनके पास वो ताकत भी है, वो वसाइल भी है जहाँ पे वो किसी भी जालिम को रोक सकते हैं। लेकिन रीज़न क्या देखना जो है वो क्यों नहीं करते। वहाँ ये जो बात आती है वो वही आता है, जियो पोलिटिकल इंटरेस्ट्स और जियो इकोनॉमिकल इंटरेस्ट्स। यानी हम ये देखते हैं कि जो उनका ये दावा है, उस वक्त जब हम देखते हैं कश्मीर का मसला आता है या फ़लस्तीन का मसला आता है, तो हम देखते हैं उनके जो ये जो दावे हैं वो फिर उस तरह लागू नहीं होते हैं जो वो कहते हैं। यानी इंसाफ का वो काम नहीं देते, एक जगह पे एक मयार है, दूसरी जगह पे दूसरा मयार है। नाज़रीन, आपको बताएं कि डॉक्टर जाहिद अनवर खान भी हमारे साथ मौजूद हैं, बैनुल-अक़वामी उमूर के माहिर हैं। डॉक्टर साहब, आपसे इस हवाले से मैं पूछना चाहूँगा कि जिस तरह हमने बात की जियो पॉलिटिक्स और जियो इकनॉमिक्स के हवाले से, तो क्या समझते हैं कि कितना अहम है ये किसी भी मुल्क को ख़ास करके उस हवाले से ताकत देने में, और क्या समझते हैं कि पाकिस्तान में ये इन चीज़ों का लैक है जिस बुनियाद पर हम बैनुल-अक़वामी सतह पर इन इशूज़ को सही तरह से टैकल नहीं कर सकते? आपका बहुत शुक्रिया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कि आपने मौका दिया इस अहम मौजू पे बात करूं। अभी साहब ने बड़ी कॉम्प्रिहेंसिवली जो है अहाता किया उन सब इश्यूज का जो कश्मीरी जो है फेस कर रहे हैं। बिल्कुल जियो पॉलिटिक्स की और जियो इकोनॉमिक्स की बात अपनी जगह पे, लेकिन एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के नाते जिसका काम है, जो इसलिए बना है कि वो अमन की को जो है फरोग दे और जो है इंसानी हुकूक की पामाली न हो, तो अक़वाम मुत्तहिदा की जिम्मेदारी बनती है कि अपने करारदाद जो उन्होंने पास किए हैं जिसमें कश्मीरियों को हक़ खुद इरादियत दिया गया है, और उन जो है रिजोल्यूशंस की करारदादों की बीजेपी की जो मौजूदा हिंदुस्तान की हुकूमत है उसने जो कश्मीर की हवाले से जो एक बड़ा जो इतना बड़ा ड्रास्टिक डिसीजन लिया है और उनकी जो थोड़ी बहुत अटानमी थी, जो खुसूसी हैसियत थी, उसको भी ख़त्म कर दिया है। तो अक़वाम मुत्तहिदा खामोश तमाशाई बना हुआ है। और ये जो है उसकी क्रेडिबिलिटी पर एक बड़ा दब्बा है। कश्मीरी अवाम के साथ जुल्म हो रहा है, उनके माशरती, माशी और जो है सियासी हुकूक असब हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की अपनी करारदादों का जो है पामाल किया जा रहा है, बैनुल-अक़वामी हुकूक की पामाली हो रही है, लेकिन एक ऐसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन सारी दुनिया की जिसकी नजरें उन पर लगी हुई है कि अमन को वो जो है फरोग देगा, वो जो है इंसानी हुकूक की पामाली को रोकेगा, कश्मीरी जो है वो उसके साथ वही जुल्म हो रहे हैं, लेकिन वो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन अक़वाम मुत्तहिदा जो है कोई जो है एक्शन नहीं ले रही कि हिंदुस्तान की जो जिस तरह भी फरमाया गया कि फाशिस्ट हुकूमत, एक्सट्रीमिस्ट हुकूमत, बुनियाद परस्त हुकूमत जो इस खित्ते में इंतहा पसंदी को फरोग दे रही है, जो है अक़लियतों पर जुल्म कर रही है, और खासकर जो है कश्मीरियों के साथ बहुत ज्यादा जुल्म हो रहा है, उनकी डेमोग्राफी को
मैनेज किया जा रहा है, उनकी अक्सरियत को अक़लियत में तब्दील करने की कोशिशें हो रही हैं, उनकी जो है माशी हुकूक जो है वो असद किए जा रहे हैं, डॉक्टर साहब लोगों को लाकर वहाँ पे आबाद किया जा रहा है। तो ये जुल्म हो रहे हैं और इंटरनेशनल कम्युनिटी देख रही है और सिक्योरिटी काउंसिल के मुस्तकिल मेंबर्स देख रहे हैं और अक़वाम मुत्तहिदा उसी तरह की गलती कर रही है जिस तरह लीग ऑफ नेशन ने की थी सेकंड वर्ल्ड वॉर से पहले। अपीसमेंट की पॉलिसी जा रही है, उसको अगर आप जियो पॉलिटिक्स का नाम दे या जियो इकोनॉमिक्स का, क्या मुस्तकिल मेंबर का यही काम है कि अपने नेशनल इंटरेस्ट के तनाजुर में चीजों को देखे या एक कोई जो है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड भी है। अभी जो है फरमाया गया कि डबल स्टैंडर्ड है, बिल्कुल यही डबल स्टैंडर्ड जो है बदमनी की बड़ी वजह है। अगर सारों के साथ एक मायार के साथ जो के मुताबिक जो है बर्ताव किया जाए, ईस्ट तिमूर के साथ जो जिस तरह का जो है मायार अपनाया गया और वो अगर मजलूम कश्मीरियों के साथ अपनाया जाए तो जुल्म बंद हो जाएगा, खुशहाली आएगी। इस हवाले से हम देखते हैं कि ये डबल मायार है। अगर जो है हिंदुस्तान की हुकूमत दहशतगर्दी करती है, रियासती दहशतगर्दी करती है मजलूम कश्मीरियों के साथ, तो उन पे खामोशी है। लेकिन अगर कहीं जो है दहशतगर्दी हो और वो मुसलमानों के हाथ हो तो उनके लिए मायार दूसरा है। एग्जैक्टली, बिल्कुल। डबल स्टैंडर्ड जो है ये बदअमनी की, जुल्म की और दहशतगर्दी की बड़ी वजह है। अगर मौजूदा बीजेपी की हुकूमत को इस इंतहा पसंदी से नहीं रोका गया तो न सिर्फ इस खित्ते में इंतहा पसंदी फैलेगी बल्कि सारी दुनिया जो है उसको जो है सामना करना पड़ेगा दहशतगर्दी का। जरूरत इस बात की है कहीं पे इंतहा पसंदी हो तो उसको रोके। तो हिंदुस्तान जो है अमन के लिए इस खित्ते में खतरा है, इंतहा पसंदी को फरोग दे रहा है, तो उनकी जिम्मेदारी बनती है कि हिंदुस्तान पर दबाव डाले कि कश्मीरियों के साथ ये जुल्म बंद कर दे। जी, अमन के लिए हिंदुस्तान इस पूरे खत्ते के अंदर एक बहुत बड़ा ख़तरा भी है। शेख अब्दुल मतीन साहब, क्या समझते हैं कि एज़ अ वकील पाकिस्तान किस तरह मजबूत और एक जारहाना मौक़िफ़ पूरी दुनिया के सामने रख सकता है? उसके लिए बुनियादी चीज़ें क्या हैं? क्या समझते हैं कि मईशत के लिहाज से हमें मुस्तहकम होना होगा? साथ अगर इंटरनेशनल रिलेशंस की बात की जाए तो बैनुल-अक़वामी सतह पर हमारे रिलेशंस कैसे मजबूत बनाए जा सकते हैं कि हम P5 को भी कायल कर सकें और साथ अक़वाम मुत्तहिदा में अपना इशू ऐसे रख सकें कि वो भी इस पर बोल उठे और कम से कम वहाँ पे जो मजालिम हैं उन्हें रुकाया जा सके। देखिए, इसमें कोई दूसरी बात नहीं है। मजबूत पाकिस्तान जो माशी तौर पे होगा वो तहरीक आज़ादी की ज़मानत है, कामयाबी की। सही, इसमें दूसरी राय नहीं है। दूसरी बात यह है क्योंकि जो कश्मीर का मसला है, पाकिस्तान इस मसले का एक फरीक भी है, ठीक है, और एक वकील भी है। तीसरी बात यह है, जहाँ तक मकबूजा कश्मीर के अवाम का ताल्लुक है, हम जब देखते हैं खास कर जो 88 से शुरू हुई है तहरीक और आज तक कश्मीरी उसी तरह डटे हुए हैं और उसकी बुनियादी मिसाल जो है वहाँ फौज में हिंदुस्तान ने कोई कमी नहीं की है बल्कि इजाफा किया है, बल्कि ब्लैक लॉज में इजाफा किया है। यानी अगर अब कश्मीरियों को ये एक उम्मीद जो है या कश्मीरियों को अगर नज़र है अल्लाह के बाद वो ममलिकत खुदादाद पाकिस्तान पे है, क्योंकि पाकिस्तान जो है एक रियासत है। हम चाहते हैं कि कश्मीर के हवाले से पाकिस्तान की जो पॉलिसी है वो हमेशा प्रोएक्टिव होनी चाहिए, हमें रिएक्शनरी नहीं होना चाहिए। हमने देखा है माजी में जो गलतियां हुई है उसको हमें दुरुस्त करने की ज़रूरत है, हमें अपनी पॉलिसी को रिविजिट करने की ज़रूरत है, हमें इंटरनेशनल लेवल पे लॉबी करने की ज़रूरत है, क्योंकि कश्मीर का जो मसला है ये एक हकीकत मसला है। कश्मीर का जो मसला है ये हकाइक पे मबनी है। तो इसलिए हम समझते हैं कि जो भी पाकिस्तान ने आज तक कश्मीर के हवाले से किया है, जिस भी पार्टी ने किया है, जहाँ पे भी उन्होंने बात की है, उसको सराहते हैं। स्वार्थी महाज पे क्या कहेंगे कि जिस तरह की कामयाबियां हैं और जिस तरह बात की जा रही है, वो प्राइम मिनिस्टर अगर जाते हैं, इस तरह आर्मी चीफ जैसे गए,
وہاں پہ یونائٹڈ نیشن کے اندر بھی اور ساتھ امریکہ کا دورہ ہوا، اس میں بھی انہوں نے بھرپور طریقے سے موقف اختیار کیا. کیا سمجھتے ہیں کہ خالی بات چیت کرنا یا کسی چیز پر زور دینا وہ ایک ڈفرینٹ چیز نہیں ہے؟ دیکھیے ہمیں پہلے دیکھنا ہے کہ ہم جس کے ساتھ ہمارا مقابلہ ہے یا جس نے جو یعنی آکوپیشنل فورسز ہے یعنی قابض جو ہے وہ ہندوستان، وہ تو ہندوستان تو بہت شاطر ہے. اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ان کی جو ماضی ہے نا ہمیں وہ بھولنا نہیں چاہیے. ہم کشمیری بھی چاہتے ہیں کہ مسئلہ کشمیر کا ایک آگرو مندانہ حل نکلے، ٹھیک، اور ہم کشمیری بھی چاہتے ہیں مسئلہ کشمیر کا حل نکلے لیکن وہ ٹیمپرری حل نہ ہو، وہ پرماننٹ بیس پہ اس کا حل نکلے. ٹھیک، تو ہم نے دیکھا کہ بھارت کی جو ہم دیکھیں گے وہ کبھی جو ہے نا کہتے ہیں نا کہ لاتوں کے بوت باتوں سے نہیں مانتے. ڈیفینیٹلی وہ تو ہے کہ آپ دیکھیں نا ان کے عزائم کیا ہے. ابھی آپ کشمیر کے اگر ہم دیکھیں گے، ابھی آپ نے یہ ڈاکٹر صاحب بھی بات کر رہے ہیں، یہ جو وہاں پہ ہماری یہ ڈیموگرافی جو چینج کی جا رہی ہے، جو یہ انہوں نے 335A اور 370 آرٹیکل کو روندا ہے اور جو اب غیر ریاستی باشندوں کو وہاں پہ آباد کیا جا رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ بھارت آگے بڑھ رہا ہے، اس کو روکنے کی ضرورت ہے. اور راجہ صاحب ایک بات یہ میں ضرور کروں گا، پھر آپ یہ کریں. اور پھر یہ بی جے پی جو ہے اس نے کیا اعلانات کیے؟ اس نے کہا میں بابری مسجد کو منہدم کروں گا، شہید کروں گا، انہوں نے کیا. انہوں نے کہا کہ میں 37 آرٹیکل اور 35A کو ختم کیا کروں گا، انہوں نے کیا. اور ان کا جو اب یہ ہے کہ ہم آزاد کشمیر کی طرف دوڑیں گے. یہ ہماری مضبوط آرمی ہے الحمدللہ، لیکن ان کے عزائم کو ہمیں بھولنا نہیں چاہیے. ان کے کیونکہ جو ان کے وہ بابانگی دور اعلان کرتے ہیں کہ ہاں آزاد کشمیر جو ہے وہ ہمارا علاقہ ہے. تو ان کے جو یہ توسیع پسندانہ عزائم ہے، اس کو روکنے کے لیے ہمیں ہر محاذ پہ ایکٹیو رہنا چاہیے. نہیں تو اس کے لیے ڈپلومیٹک لیول، پولیٹیکل لیول یا یہ ہے، اس سے آگے بڑھ کے ہمیں مسئلہ کشمیر کو یعنی آگے بڑھانے کی ضرورت ہے اور ایک مضبوط پالیسی کے تحت آگے بڑھنے کی. ڈاکٹر صاحب کی جانب بڑھوں گا اور ڈاکٹر صاحب آپ سے اس حوالے سے پوچھوں گا کہ کیسی پالیسی اور کیسے ہم آگے بڑھ سکتے ہیں، جو ان کا ایک نظریہ ہے اس بنیاد پر. جیسے شیخ عبد المتین صاحب نے اس حوالے سے پراپرلی بات کی اور انہوں نے بتایا کہ جیسے مقبوضہ کشمیر میں بات کی جا رہی ہے، اسی طرح آزاد کشمیر میں بھی وہ کل کر سکتے ہیں اس طرح کا کوئی اٹیک یا اس طرح کا وہ پرابلم کریٹ کر سکتے ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمیں کس محاذ پر زیادہ توجہ دینی ہوگی اور سفارتی لحاظ سے ہم کیسے آگے بڑھ سکتے ہیں اس میں؟ بہت شکریہ. بالکل شیخ صاحب نے بڑی اچھی بات کی کہ بی جے پی حکومت کی جو روڈ میپ والی بات ہے وہ بالکل صحیح ہے، اور اس حوالے سے ہے کہ باقاعدہ اس پہ بھرپور طریقے سے اس کو کاؤنٹر کرنے کی ضرورت ہے. اور اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ ایک بنیادی طور پر بی جے پی کی یہ جو برنکمینشپ ہے، یہ جو ایگریسو پالیسی ہے، یہ اس کی اندر کی جو کمزوری ہے اس کو چھپانے کی کوشش ہے. اور اس حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو ان کی یہ ایگریسو پالیسی ان کے اندر، ہندوستان کے اندر جو ہے وہاں پہ بھی بڑی پرابلم کریٹ کرے گی. ہندوستان کے عام پبلک کو جو ہے ان کو دھوکہ دیا جا رہا ہے، اور اس طرح کی یہ جو بڑے بڑے اسٹیٹمنٹ دے کے ان کو الیکشن میں، آنے والے الیکشن میں کو جیتنا چاہتے ہیں. اور اس بی جے پی کی یہ موجودہ جو پالیسی ہے، یہ اتنی اگریسو پالیسی، اور جس سے سارے نائبرز نالاں ہیں اور ان کی راہ میں بڑی رکاوٹ، ان کی ہیجمونک ڈیزائن کی راہ میں بڑی رکاوٹ پاکستان ہے. تو ہندوستان کے عام پبلک وہ امن چاہتی ہے، اور جو ہے بی جے پی کی حکومت جو ہے وہ جنگ کے راستے پہ جا رہی ہے. اور وہاں پہ اقلیتوں کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے ان کو بھرپور طریقے سے ایکسپوز کرنا چاہیے. وہاں پہ بہت سی پروونسز میں جو ہے ایک تحریکیں چل رہی ہے، تو سینٹریفیوگل فورسز جو ہے وہ کمزور ہو رہی ہیں، اور سینٹریفیوگل فورسز بی جے پی کی حکومت میں وہاں پہ مضبوط ہو رہی ہے. اقلیتوں کا مرکز سے جو ہے وہ اعتماد اٹھ چکا ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہندوستان کے عام لوگوں تک جو ہے یہ بات پہنچائی جائے کہ بی جے پی کی حکومت جو ہے وہ جنگ کے راستے پہ گامزن ہے، جس کا الٹیمیٹ نتیجہ ہندوستان کے عوام کے لیے اچھا نہیں ہوگا. دوسری بات یہ ہے کہ پاکستانی قوم کشمیریوں کے ساتھ روز اول سے کڑی ہے اور مضبوط طریقے سے کڑی ہے. غلطیاں ہوتی ہیں، انسان جو ہے پرفیکٹ نہیں ہے،
मौक़िफ़ है जिस पे इब्तिदा ही से पाकिस्तानी कौम कश्मीरियों के साथ खड़ी है। इस हवाले से जिम्मेदारी बनती है कश्मीरी डायस्पोरा और पाकिस्तानी डायस्पोरा की, जो यूरोप में हो या मशरिकी या शुमाली अमेरिका में, कि वो भरपूर तरीके से हिंदुस्तान के जुल्म को आश्कारा कर दे ताकि इंटरनेशनल कम्युनिटी हिंदुस्तान पर प्रेशर डाले। इसके अलावा जितनी भी इंटरनेशनल और रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ पे भरपूर तरीके से कश्मीरी कास्ट को जो है हाईलाइट किया जाए और हिंदुस्तान की रियासती दहशतगर्दी को एक्सपोज किया जाए और हिंदुस्तान के और अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर पाकिस्तान जिस तरह कोशिश कर रहा है और रीजनल लेवल पर और बड़ी ताकतों के साथ डिप्लोमेसी के थ्रू, ताकि कश्मीर का मसला पुरअमन तरीके से हल हो, इस तरह की। और साथ साथ आपने जो इब्तिदा में बात की थी, कश्मीर कास्ट की कामयाबी के लिए मजबूत पाकिस्तान जरूरी है। दिफाई तौर पर मजबूत पाकिस्तान की तरफ जो है वो कोई आजाद कश्मीर हो या पाकिस्तान हो, कोई मेली आंख से नहीं देख सकेगा। तो पाकिस्तान को मजबूत करना चाहिए, दिफाई लिहाज से, माशी लिहाज से, सियासी लिहाज से मुस्तहकम करना चाहिए। अब आप देखिए, अगर पाकिस्तान माशी तौर पर मुस्तहकम होगा तो जितने भी इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है वो कितना ही प्रेशर क्यों ना डाले, पाकिस्तान को जो है अपने मजबूत मौक़िफ़ से हटाने में कामयाब नहीं होंगे। जी जी, तो कश्मीरी कास्ट की कामयाबी के लिए जी सर आपका पॉइंट कि पाकिस्तान दिफाई लिहाज से, माशी लिहाज से, सियासी लिहाज से मजबूत हो और इस्लामी ममालिक जितने हैं उनको भी मिलाया जाए कि कश्मीर आलम इस्लाम का हिस्सा है, उन पर जुल्म, आलम इस्लाम पर जुल्म है। सर आपका पॉइंट आ गया। ममालिक को साथ मिलाकर जो है कश्मीरी कास्ट के लिए मुत्तहिदा कोशिश करनी चाहिए, जिससे जो है फिर कामयाबी आसान हो जाएगी, कामयाबी की मंजिल जो है वो मिल जाएगी। जी ठीक। शेख अब्दुल मतीन साहब, एक तो इलेक्शन जो होने जा रहे हैं 2024 के भारत के अंदर, उसमें एक तो मकबूजा कश्मीर के अंदर जितनी भी उनकी रियासती जमातें हैं उन पर पाबंदियां लगाई जा रही हैं, नंबर एक। दूसरे नंबर पे ये चीज़ है, मैं आपसे पूछना चाह रहा था कि क्या इलेक्शन के ज़रिए वहाँ पे चेंज लाया जा सकता है? मींस जैसे वहाँ की रियासती जमातें हैं, क्या वो अगर इक़्तिदार में आ जाएँ तो उससे उन्हें कोई फ़र्क पड़ सकता है? मींस वहाँ के ज़ाहिर है जिस तरह वो डेमोग्राफिक चेंजेस लाना चाह रहे हैं उस बुनियाद पर पूछ रहा हूँ। तीसरे नंबर पर आजकल जो वार चल रही है वो है सोशल मीडिया वार। सोशल मीडिया वार के हवाले से अगर आपको बताया जाए तो टेक्नोलॉजी के एतबार से भारत ऐसी उसकी पॉलिसीज़ हैं कि आप अगर सोशल मीडिया की कोई पोस्ट ऐसी करेंगे जिस पे कोई मोदी का नाम होगा या कश्मीर के हवाले से, तो वो भी आपके लिए स्ट्राइक्स आ जाती हैं, आपके लिए मुश्किलात फेस होती हैं। तो क्या समझते हैं इन तमाम तर चीज़ों को सामने रखते हुए हम कैसे आगे बढ़ें? हाँ, असल में जो आपने ये बात की है ना कि कश्मीर के हवाले से, पहले जो वहाँ पे इलेक्शन है वहाँ पे इलेक्शन नहीं होते हैं, वहाँ पे सिलेक्शन होती है, ठीक, जहन में रखना। और जहाँ तक आपने कहा है जो ये जो वहाँ पे रियासती जमातें हैं जो नहीं, वहाँ पे वोट बिल्कुल नहीं डाला जाता, या डेफिनेटली इतने बड़े पैराए में 6 लाख से अबाव वहाँ पे फौज खड़ी है, उसकी बुनियाद पर सारा ऐसे ही चेंज होता है डायरेक्ट? मैं वही कह रहा हूँ कि उनकी जो रियासती जमातें वहाँ पे थे, जैसे नेशनल कॉन्फ्रेंस है, PDP है या बाकी जमातें, उनकी सियासत क्या थी? वो यही कहते हैं कि हमने भारत से ये 3 चीज़ें ली है, ठीक है ना? ठीक। कि हम जो हमारा सिर्फ 3 चीज़ें उनके पास है, बाकी हमें आज हमारा अपना झंडा भी, हमारे अपनी ये असेंबली है, वो कहाँ गई? यानी उनकी सियासत को भारत ने मिलिया मेट कर ये भी अपनी जगह बात है जो हमें जहन में रखनी चाहिए। तीसरी बात जो आपने ये भी कहा है कि जो वहाँ पे लोगों के साथ जिस तरह वो ये आपने कहा कि सोशल मीडिया के हवाले, सहाफियों के लिए बड़े पैमाने पर पाबंदियां हैं ना। अभी खुर्रम परवेज साहब जो है, आसिफ सुल्तान साहब जो है, गुल साहब जो है, ये क्यों पाबंद सरासर है? यानी आप अगर खुर्रम परवेज साहब की बात करें, उन्होंने वही लिखा है जो उन्होंने वहाँ पे देखा था, उन्होंने वही पोस्ट की बात ही नहीं है मेरे भाई। वहाँ पे आपको किसी भी बंदे को पकड़ते यार इधर फोन दे दीजिए जी, फिर आप देखते हैं कि कोई पाकिस्तान से कॉल तो नहीं है, आज़ाद कश्मीर से कॉल तो नहीं है, सही। उस पे उन्होंने
ये नहीं ये कदगने लगाई है। यानी वहाँ का मीडिया जो अगर आप इस वक्त देखेंगे वो तो अंदरूनी इंडिया का मीडिया जो है उस हवाले से ये पिछले दिनों रिपोर्ट थी जो एमनेस्टी इंटरनेशनल की और साथ अमेरिका के एक इदारे की, इस हवाले से वो इस हवाले से ये कह रहे थे कि वहाँ पे जो बड़े सहाफ़ी हैं भारत के, उनके खिलाफ वो प्राइवेसी उनकी सारी फारिग कर दी गई है। वहाँ पे बड़े पैमाने पर उनके लिए उनकी पूरी जजमेंट की जा रही है। वो किस किस से राब्ते में है सिर्फ ये 2024 का इलेक्शन जीतने के लिए। मैं आपको बताऊंगा ये जो एक ढोंग इन्होंने रचा है, हाँ जी, डेमोक्रेसी का, सेकुलरिज्म का, आजादी का, ये आपने खुद बात भी की है। कश्मीर में क्या हो रहा है तो वो तो बिल्कुल ही हर लिहाज से ना मखदूश है वहाँ की सूरत हाल, और भारत ने हर लिहाज से वहाँ पाबंदी लगाई है। जितने भी आप ह्यूमन राइट्स कमीशन तबका है जो वहाँ पे रूल करता है। अब आप देखिए भारत की अंदरूनी सूरत हाल देखिए, क्या वहाँ पे अकलियतें महफूज है, सिख महफूज है, बौद्ध महफूज है, ईसाई महफूज है, मुसलमान महफूज है, निचली जात के हिंदू महफूज है, कोई महफूज नहीं। हाँ, बिल्कुल उनकी तबाही निकाल दी गई में नहीं है। और वो फिर कोई भी उनको अलकाब लगा के कह रहे कि ये देशद्रोही है, ठीक है ना। हालांकि वो देश के होते हैं, जो उनका भारत देश है उसके मोबी वतन होते हैं, वो जो असल बीमारी है उसकी तरफ वो यानी तवज्जो दिलाते हैं, लेकिन उनको कोई और अलकाब लेके देके ना देशद्रोही कहा जाता है। ये भारत का बदकिस्मती से वतीरा। एग्जैक्टली, आपने बिल्कुल बजा कहा। और वाकई में भारत सिर्फ एक राग अलाप रहा है जमहूरियत का। अंदरूनी अगर सिचुएशन देखी जाए तो अक़लियतों का बुरा हाल है। मुसलमानों के साथ वहाँ पे जुल्म ज़्यादती की जा रही है, ईसाइयों के साथ, और साथ सिखों के हवाले से आपने पूरी दुनिया में देखा कि जिस तरह उनकी टारगेट किलिंग के लिए रा के एजेंट पूरी दुनिया में फैले हुए हैं। ये तमाम तर सिचुएशन है उस भारत की, और ख़ास करके दुनिया के हवाले से ये लाजमी पैगाम है कि दुनिया को होश के नाखून लेने होंगे, वरना ये साउथ एशियन रीजन में भी वही एक वार की सी सिचुएशन होगी जो मिडल ईस्ट क्राइसिस की भी है। डॉक्टर जाहिद अनवर खान, आपने कॉल के ज़रिए हमें ज्वाइन किया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शेख अब्दुल मतीन साहब, आप स्टूडियो में आए, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। नाजरीन, आज की प्रोग्राम से इतना ही। अगले प्रोग्राम के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।